So we have already done this, right? Yeah. So 4 is coming, and then 3 is leaving. There's a little bit of timing issue. We can fix that. Okay. Because 3 should go, then the 4 should come. And now we need to have what I want. The 3 should have some kind of a lid opening, and then there should be some kind of a crackers. Okay, then the sound of the crackers and all, that will be your job to add up things, and you can add things up later on that. So let's get started. Open up the computers and let's get it done. Okay, so where is this thing? Why is it not opening? VS Code is here. VS Code. Why is VS Code not opening? Okay, now this is my VS Code. We will add things here. So firstly, we go to the happy.css. Someone has come up. Let me add that guy, Salman Maktu. Everybody will open up the cameras. Okay, and you should do with me. That's important. Now we have seen that we got a main text, we got the year text, then we got the span in the year text. Okay, then we got the span.3. Okay, and in fact this span.3 is where I want to target something, right? What I want to do is I want to lift that up, that something, some kind of a lid should come up and lift it up while the balloon is coming up. So what I do here is I don't want to use I can do like this span. Have we done have I done span.4? We have done, right? So what I will do is I will use span.3, then colon pseudo element b4. Okay, that, because we can add before and after. We know that. I will go a little faster today because I would like to do the flexbox exercise and some use cases of that. Maybe we build up some kind of a site maybe by tomorrow, and so therefore I would like to go a little faster because I have already explained these things, and in the meantime if you feel somewhere you can stop me. Okay, I say span.3 b4, right? It's a pseudo element, we know it, and I'm saying the content because I just want to have some empty content right now like we did before. Let me add this Imran Qayyum. Okay, then after content I will say I will make its width as 0, and I will make its height as 0. If I make width and height zeros, and then there'll be nothing, but I need some kind of that some kind of a stick to get up, so that therefore I will have some kind of a height, say for example 6 pixels. So I'm having height 6 pixels, I'm having width 0, and maybe little border radius. I don't need that, but maybe I will have some border radius, say for example 3 pixels or something subtle. If we don't do this, not required. And I will some background color, say background color of that guy, right? It should be same as that of this guy, right? That would be the same color, which is the text having. Copy and Command V. So background color is the same pink color which was there with the text. So I will have the background color as same as that of. Do with me. Okay, and position has to be position should be what? Yes, tell me. Absolute. Position has to be absolute, otherwise it won't get up. Okay, and I say transform, and in transform I need to rotate it. Okay, in the beginning I would not rotate it anything. I will just say rotate it to, say for example 0 degree, right? Rotate it to 0 degree, because later on in the animation part I will rotate it, not right now. Okay, I'm saying rotate to 0 degree, and I want from rotation, this transformation should be from the top and left, right? So that is called transform. That's what we call as transform
we call transform origin. So where from the transform starts, it should start from the left and top, not from the bottom and all. Okay, because if we say before can be, before any element on the left of it, but if I say left top, so it will start from the left top. Okay, okay, and let it be top will be around, what should be the top of it? Let's see, the 42% is was the top, I guess, here. So let the top will be, I have to figure it out, huh? We have to see where the top will be later. Let right now it be some 50 50 pixels. Okay, right now let me see then later on what is the width of the tree and all. Okay, and I need animation, and I call it animation as something 3, maybe 3 top. I call 3 top animation. Let it take some 2 seconds. Later we'll change it 2 seconds, and I say ease, EASE. Terminator is not here, that's why it's not showing. Ease, we have done something wrong again. 3 top animation ke baad colon missing. Okay, then I should say ease in out. Okay, and definitely it will take some time. It has to take some time till my 4 comes up, right? Till my 4 comes up, and it takes 7 seconds for the 4 to come up, right? We have seen it yesterday. What is this? That our 4, this is the Majid Baika. We have seen that 4 comes, it will take 7 seconds, right? Yesterday we saw it, it took the 7 seconds. After 7 seconds, this 3, this thing should activate. So I will say 7 seconds. So it will take me 7 seconds, and maybe whatever you want to do. So then therefore we need to have this 3 top animation somewhere. Command C. How we gonna have that 3 top animation? Yes, at the rate of, yes, tell me. Keyframes. What will the keyframe do? In keyframes we have what? It will call the animation. It is like a call, right? It's like a call to the animation, right? That's right. And after I say keyframe, what should be, only Amir is telling, what about others? There should be an identifier. What is the identifier doing? Animation name. Animation name. Nice. So animation name. What's the animation name? Tell me. Other guys also open up. 3 top. 3 top. Using 3 top, command V. What should be in the keyframes basically? What should be in the keyframe? What is keyframe all about? What's keyframe doing? What's keyframe? What we do in a keyframe? What you do, what you want the animation to do. In what time actually? Right? Yeah. Because if we have given this animation, this 3 top, that was a 3 colon before, span out 3 before, I am giving it 2 seconds. So इस 2 सेकेंड में जो आप करना चाहते हो वो इसमें हम लिखेंगे. So it will be from 0%, 10%, 20%. We can break it any time. These 2 seconds, okay? Because we have 100% of time. 100% of time is 2 seconds right now. So I can divide this into whatever time I like. But I need just 2 things here. From and to. That means from 0% to means 100%, right? From means 0% and to means... What do you think? What do you think I should do? I should start rotating. Transform, rotate. Okay, from say minus 30 degree. Okay, from minus 30 degrees, self-explanatory. Try to understand it. And width, and I will get the width because I had 0 width right now. Before, if you see, I put up here, I put up some height but no width. In the 3 before, where is the 3 before? Here I put width 0 but height 6 pixel, but width was nothing. So I want some width also now. Okay, maybe width I got the 40 pixels. Okay, 2, I just copy this, command C and command V. Now rotate to, say for example, minus 150 degree. Work it out what happened in the minus 50 degree and all, and width some 70 pixels. Save it. But only thing we need to do is we need to fix the top.
of that, where is that? Yeah, here. We need to see where the top stands. Okay, uh, vis-a-vis to our project. Okay, let it happen. So when this animation starts after 7 seconds, when this force stops, when the force stops, now animation comes up. In fact, the top I have given is perfect. Okay, I don't need to change that. Okay, but you can go little down, make it little down or something, but it still is okay. You see the 4 when starts, the animation comes up, the 3 comes up, and then they go up together, right? Now you got it, what you had done. Just try to work it out, break it into pieces. Okay, this animation part, and then have it understand what's happening here. This is very simple, and this is what I have explained already in my previous two classes. It's the same thing. Now I want to have some kind of crackers here. Okay, audio part of that will be done by you guys as an assignment. Now because it will take otherwise too much of long with this project. Now I want to have a cracker like this. Now I want to have a crackers like this. I'll show you how. It should be like this, and they should come late after this comes up. Then my cracker should be like this. There should be one circle. They will come up from the down the circle. Then there should be some kind of a spiky thing, like this, spiky. Okay, and there's a circle, and then there will be some kind of those lights. Okay, and then there will be these guys, these dots, so that it will look like kind of a firecracker or something like that, right? Okay, I'm bad in drawing, so I will do 4 of such things. It will be a circle, it will be some kind of which is having those rough surface, which gives us like a little bit of shape. Then these spikes, and then dots to decorate it. It looks like as if some crackers are bursting, and then these are some these streaks coming up, light streaks coming out with those sparks here. These dots will act as sparks. They will be all over the circle, right? This is what I want to do now. Therefore first I need to go to the happy.html to add up, because we have nothing here. So we need in this happy.html, we need the stuff for this. Maybe I call that as a cracker. Okay, now I have a cracker. So firstly here what you do is you say dot cracker. Okay, it will create a div with a cracker. This is the parent class. Then I get here div with a dot, say for example I call it cracker1. Okay, inside the cracker1 I create a span tag. Okay, inside a span tag I create an I tag, and I say control option down arrow 3 times. Then I select whole of this cracker class, and control option down arrow twice, 3 times, and 4 times. I got 4 crackers, such crackers. So I call it C1, I call this C2, I call it C3, and I call it C4. Now I got a cracker stuff for the 4 crackers. The parent class of the cracker is the cracker. Okay, parent div. Inside I have a C1 for this first cracker. I have a C1 div, and inside I got a couple 3 spans with the I tags inside. These I tags will be like those dots. With these I tags I will open up the dots, and this cracker will have me the circles, and this C1, C2, C3, and C4 will have those spikes and all. Okay, you're done with this. If you are doing with me, do it. Just watch it out what I'm doing. I'm saying I got a parent class cracker, then I got C1, C2, C3, C4, and inside the C1 or C2 we got 3 span tags, and inside these 3 span tags I got 3 I tags. Now this I tag will be used for those dots and all. Then the span tags will be used for spikes, and the cracker and the C1, C2 and so on will have the circles with the cracker, and that जो सर्कल के अंदर मैंने वो डिज़ाइन बनाया वो हम C1, C2, C3, C4 से कर सकते हैं. ठीक है, ओके, गेटिंग.
So now we move on to our happy.css here. Now here, after balloon, after, what I will do, I will have firstly the upper class name is what? Tell me. What is the upper div class name? That's cracker. I have a cracker. So I will design my cracker. What should be the cracker like? The now cracker will have some width and will have some height, and I will tell you what to do. Just write with me. I will say dot cracker. Why dot cracker? Because it is the Class. It's a close name. absolutely. So I got some width. Not WebKit text and stroke all this. Like width, I say width 100 pixel, 100%. Should I put? Okay, I will actually. This is my outer div, so I will put it 100%. Right, because I want it to have the whole space so that I can put it anywhere on a screen, because I want crackers all over the screen, right? So therefore I will want to have it height and width is 100%, and will take definitely the 100% of the parent class. Okay, and display is block. Display is block. Position got to be absolute. Position got to be absolute. Okay, because then if the position is absolute, then we can work it out. And top, I will put the start top from the 0 pixel, and also the left I say 0 pixel, right? Top and left 0 pixel. Control S, save it. Pretty will help it out. You can say overflow hidden, but we don't need right now because nothing is gonna overflow, because everything will stay inside this cracker. Then in the cracker, I say the cracker and space and div. That means all the descendants of the cracker, cracker, cracker is cracker, इसमें जितने भी divs है उनके ऊपर काम होगा. ठीक है, यानी कि अब cracker के अंदर जो divs है ना, अगर आप देखेंगे HTML, cracker के अंदर जो भी divs है, cracker के अंदर ये मेरा क्लास cracker हो गया. ठीक है, यहाँ से मैं अपना फायर वर्क शुरू करूँगा. आई विल से फायर वर्क starts here. It will give you a lot of actually practice to these things. Now इसमें जितने भी divs हैं, तो वो इसमें ये वाला div है हो गया एक. फिर ये क्या हुआ है यहाँ पे, मैंने गड़बड़ किया कुछ लगता है मुझे. ये हमने तो गड़बड़ की है, क्योंकि क्रैकर क्लास तो पेरेंट है ना ऊपर, ये तो हमने रिपीट किया हुआ है. एक मिनट, लेट मी डिलीट ऑल दिस. एक मिनट. ये मेरा क्रैकर क्लास है, इसका डिव यहाँ ख़त्म है. फिर डिव C1 मेरे पास है. ओके, इसको मुझे रिपीट करना है. C1 को ये रिपीट करना है मुझे. कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो 2 3 4 टाइम्स. सो C1, C2, C3 and C for us. Discomfort in my eyes today. So this is the cracker, which is the outside, and inside we have divs. So we have 4 divs like C1, C2, C3, C4. So this will be applicable to all the divs. What I am doing here, I am saying dot cracker and div. That means whatever I am doing, it will be applicable to whom? All the divs. So what I want to do, I want to give some border to this. Say border, for example, 2 pixels. Okay, and solid, and maybe I want a red color. Okay, or some different shade of red, maybe subtle red or something. Maybe yellow is great for this, or Yellow is good for cracker. big is a base of that circle. Okay, so in fact red, it should be red, means half burnt, right? It should be red, like, because जो अंदर वाला होता है ना वो red ही रहता है, बाद में जो जलेगा ज़्यादा वो yellowish बिल्कुल चलता है. So let it be red. Border is this thing. Position gotta be absolute. All the divs I'm talking about, let me make their position absolute so that they can move anywhere I like. And opacity is right now 0. I don't want to show them in the beginning, they shouldn't be visible, right? And I need to have some animation.
where I say the animation is the cracker animation. Okay, I call it cracker animation, or whatever you like to call it. Maybe it will have some 5 seconds to go, ease in out. Okay, then it has to wait for 12 seconds before everything finishes. Then it should come up and I say forwards. Okay, but I have told you what is forward, should tell me, but right now I will not say 12 seconds because I want to see them quickly what is happening here. Okay, and this cracker animation, now I need to command C, tell me how I create a keyframe here. I need to create a keyframe here, right? At the rate of जल्दी बताओ मुझे. Cracker animation. Keyframe. Oh. Keyframe. या एट द keyframe. हाँ, बाकी बताएं क्या करना चाहूँगा मैं इसमें keyframe में. Keyframe. मेरे ख्याल में हमने एक इसमें ज़्यादा दे दिया है. क्या करना चाहेंगे हम? इसमें क्या करना है? अभी समझ आएगा आपको. पहले 0% पे काम करेंगे हम. प्लस 0% पे पहले जो मार्जिन होगा मेरा, अब ये किस पे अप्लाई हो रहा है? ये अप्लाई हो रहा है क्रैकर के सारे डिव्स. 4 डिव्स है ना, तो चार चीज़ें बनेंगी मुझे. मैं कहूँगा मार्जिन टॉप जो है, पहले आप रखना एक का मार्जिन जो टॉप है, ऊपर का मार्जिन जो है वो आप 100% रखो, मार्जिन टॉप. ओके, और बताओ ओपेसिटी 0 में, ओपेसिटी आप एक काम करना, ओपेसिटी आप 0 रखना. अब बताओ, पहले मुझे बताओ कोई कि मार्जिन टॉप 100% से क्या होगा? ऊपर जाएगा ना. ऊपर कैसे जाएगा? मार्जिन टॉप पे आप टॉप का मार्जिन डाल रहे हो ना, वो ना नीचे मतलब हाइट हो बिल्कुल स्क्रीन के डाउन जाएगा. स्टार्ट नीचे से होगा, बॉटम से. एग्जैक्ट, ये कीबोर्ड पे जाएगा. ये जो स्क्रीन का बॉटम है वो वहाँ से, क्योंकि आपने पूरा ही टॉप, जितना भी टॉप आपके पास है 100% ऑफ टॉप आपने टॉप ऊपर वाला मार्जिन रखा. यानी कि अगर आपका 700 पिक्सल्स आपका ये स्क्रीन साइज है, आपने वो सारा मार्जिन रखा टॉप का. यानी कि वो सारे का सारा जो ये चीज़ है कहाँ पे आएगी? नीचे. ओपेसिटी स्टार्ट में ओपेसिटी 0 है. और विड्थ आप बता दो कितनी चाहिए आपको. मानो 2 पिक्सल है, 2 पिक्सल की विड्थ है, और 30 पिक्सल की मैं हाइट रखूँगा इसकी. ठीक है, और 30 पिक्सल की हाइट रखूँगा मैं, 2 पिक्सल की विड्थ रखूँगा मैं. डिस्प्ले ब्लॉक होने वाला है. ओके, और बताओ, और इसका इम्पॉर्टेंट है कि भाई साहब इसको गोल करना है मुझे, ये सर्कल आना चाहिए. यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस सर्कल की, जो ये ना ये वाला बीच वाला सर्कल है, ये वाला, ये मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ. उसके अंदर फिर जो ये स्पाइकी वाला सर्कल मारना है वो दूसरी बात है, तो मैं उसकी बात करूँ. तो इसलिए बॉर्डर रेडियस 50% होने वाला है, वो ये होगा. ठीक है, अच्छा. अब मैं इसी को कॉपी करूँगा, कमांड ऑप्शन डाउन एरो, और मैं लिखूँगा यहाँ पे 75%. जब 75% होगा तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तो मार्जिन को हटाएंगे हम, सीधी सी बात है. आई डोंट वांट एनी मार्जिन राइट नाउ, सो लेट इट बी 0 मार्जिन टॉप 0. ओके, 0% रख लीजिए. अच्छा, ओपेसिटी क्या करेंगे हम? अब दिखना चाहिए, तो 1. हाँ, विड्थ वही रखो फ़िलहाल, और हाइट भी वही रखो. डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, और बॉर्डर रेडियस 50%, वो सेम ही रहेगा. ठीक है, फिलहाल इसमें मैंने एक चेंज की, सिर्फ मैंने इसको दिखाया है ना, और बाकी ये अपनी जगह ही दिखेगा. नाउ आई कॉपी दिस आउट, कमांड C, कमांड V. अब मैं 80% पे आ रहा हूँ. किससे? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए हमें. अब मार्जिन क्या होगा 80% पे? क्या होगा मार्जिन? फिर से मार्जिन टॉप कुछ नहीं होगा, वो 0% ही रहेगा. ठीक है, या 0 पिक्सल बोले आप, या 0% बोले आप, आपकी मर्जी है. ओपेसिटी क्या रहेगी? 1. हाँ, और मार्जिन लेफ़्ट भी आप इसमें, मार्जिन का जो लेफ़्ट अगर है कोई चीज़, अगर इसमें लगा है मार्जिन लेफ़्ट का, वो भी 0 पिक्सल करते हैं. ओके, ओपेसिटी 1, ये वैसे ज़रूरत भी नहीं है तो फिर भी करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज़. चलो, टू बी मेक श्योर, ओपेसिटी की क्या रहेगी? 1 दिखेगा ना. विड्थ थोड़ा इंक्रीज़ करो, थोड़ा बढ़ जाएगा. विड्थ इंक्रीज़ करो. हाइट जो है इसकी डिक्रीज़ करो. फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट इसकी रखो 10 पिक्सल, कम करेंगे हाइट.
और ताकि ये पहले लंबा था ना ऐसे, ये जब हाइट ज़्यादा है फिर हाइट कम हो जाएगी, ठीक है, ताकि ये गोलाई की तरफ आ जाए, क्योंकि ये लगना चाहिए जैसे रेई जैसी आ रही है, तो इसलिए हाइट को हम कम कर रहे हैं। डिस्प्ले तो ब्लॉक होगा ही होगा, बॉडी रेस 50% होगा ही होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा बड़ा भी करना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्म बड़ा किससे करेंगे हम? स्केल से, स्केल, ठीक है। अभी मैं 0.2% रख रहा हूँ, जितना है उसका 0.2, यानी कि अब ये लाइट की तरह ऊपर आएगा और ये छोटा दिखेगा हमें, अपनी फुल ये नहीं लेगा जो इसकी स्पेस है। और फिर मैं इसको अपने स्पेस से भी बड़ा ही कर दूंगा 100% में, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं मेरे ख्याल से, कमांड C, कमांड V। अब बोलो मार्जिन टॉप, फिर से इसका मार्जिन टॉप तो वही रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका मार्जिन टॉप को अभी हटा दो, मार्जिन लेफ़्ट को भी हटा दो। अरे कहाँ गया है, मुझे नहीं ज़रूरत है इसका मार्जिन टॉप, मार्जिन ये। ओपेसिटी तो 1 ही रहेगी, विड्थ 10 पिक्सल है, हाइट 10 पिक्सल है, उसको भी वही रखो, ब्लॉक रखो 50% रखो, बस स्केल इसकी इंक्रीज़ करो। स्केल क्या करो, इसको इंक्रीज, जितनी आपकी मर्जी है, 2 रखो, डबल रखो, 3 टाइम्स रखो, 4 टाइम्स रखता हूँ मैं, ठीक है, जो आपकी मर्जी आएगी, जो स्क्रीन के हिसाब से होगा आपको। कमांड S, सेव, ठीक है। इफ़ आई गो इट हियर एंड आई जस्ट गिव इट ए गो, आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो सारे के सारे हैं, चारों के चारों एक ही जगह बन रहे हैं, है ना। अब हमें इनको फैलाना है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये चारों के चारों कहाँ पे आ गए, ये एक ही जगह आ गए, वहाँ पे कोने में आ गया ना ये, जो मैंने बनाए ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या करे काम, ये फैले, ये कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस स्क्रीन पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो इसका हमें डायमेंशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि इसका डिस्प्ले अगर हम रखेंगे, हम इसका डिस्प्ले रख रहे हैं क्या, हमने इसका डिस्प्ले क्या रखा, ब्लॉक, हमने इसका डिस्प्ले ब्लॉक अगर रखा है तो ये जा सकता है जहाँ हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। और ये जो 4 डिव्स हैं, ओके, उसमें क्योंकि डिव तो सब के ऊपर लगा, अभी हम जो 4 डिव्स मेरे पास है, 4 डिव्स में C1, C2, C3 एंड C4 है, ठीक है, उनका नाम है, यानी कि इस 4 डिव में एक का नाम C1 है, एक का नाम C2 है, एक का नाम C3 है, एक का नाम C4 है। इफ़ यू आर अगर आपको भूल गए तो यहाँ देखो, हम इन डिव की बात कर रहे थे ना, अभी इन डिव पे काम चल रहा था, लेकिन ये चारों के चारों डिव में एक ही चीज़ हो गया। हमने सारा चीज़ को सेट किया कि आपका स्केल कितनी होगी, आप बढ़ जाओगे, आप नीचे से आओगे, लेकिन अब C1, C2, C3, C4 चारों एक ही जगह पे नहीं आएंगे, अलग अलग जगह पे आएंगे। अब मैं वो 4 जगहें जो हैं इनको सेपरेट करूंगा यूजिंग दिस C1, क्योंकि C1 सिर्फ इसका क्लास है, C2 इसका क्लास है, C3 इसका है, C4 इसका है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इसको कि भाई साहब ठीक है, आपने ऐसा किया कि आपने जो है आपने क्या काम किया कि आपका बॉर्डर 2 पिक्सल है, सब डिव्स का 2 पिक्सल बॉर्डर है, आपकी ओपेसिटी फ़िलहाल 0 थी, फिर हमने इसको ओपेसिटी 1 कर दी यहाँ पे 75% पे। आप पतले थे, अब लंबे थे हाइट में, इसको फिर पतला किया और बराबर किया, ठीक है। सेम इसको लाया हमने, फिर 10-10 पिक्सल का जो विड्थ है, हाइट है, उसको 10-10 पिक्सल लाई और उसको हमने गोल भी बना दिया, और उसको फिर हमने स्केल अप किया, पहले स्केल छोटी की फिर स्केल अप किया, तो ये थोड़ा सा एनिमेशन दिखेगा कि ये फूल गया जैसे है, लेकिन सारे के सारे डिव एक ही जगह पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अब अलग अलग डिव अलग अलग जगह पे आना चाहिए। अब मेरे पास 4 डिव हैं, तो मैं कहूँगा डॉट क्रैकर जो मेरे पास है, डॉट क्रैकर में जो इमीडिएट चाइल्ड है डिव, ओके, डॉट C1, भाई किधर लिखा मैंने, div डॉट C1, तो उसकी क्या मुझे सिर्फ करनी है पोजीशन, मैं कहूँगा उसकी जो लेफ़्ट है ना वो करना आप 20%, 20% लेफ़्ट, तो यहाँ पे रखा मैंने इसको, और इसी का राइट या इसका टॉप इसका टॉप आप कर देना फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो नहीं 40%, 40% पे रखूँगा इसका टॉप, तो एक बंदा आएगा लेफ़्ट पे 20 और टॉप पे 40,
यानी कि एक बंदा आएगा यहाँ पे, देखो आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी डिले नहीं किया तो पहले ही आ रहा है, फिर हम इसको डिले करेंगे जब सारा काम होगा तब जाके होगा, ठीक है। ऐसे तो इसमें डिले है, तो आ गया ना, और ये तो फूल रहा है थोड़ा सा। एक मिनट पहले इसको करेंगे काम, फिर मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे पास मैं करूँगा कमांड ऑप्शन डाउन एरो, 2 3 और ये हो गए 4, ये है C2, ये है मेरा C3 और ये रहा मेरा C4। एक बनेगा 2040 पे, दूसरा बनाओ 1570 पे, या जहाँ आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है आप जहाँ बनाओगे आप, ठीक है। और तीसरा बनाओ वो भी बनाओ 20, अगर उसको बनाएंगे हम 2040 पे, एक मैंने रखा C1, C3 का हम फिर 2040 पे ही रखेंगे, लेकिन राइट साइड अब करेंगे काम, तो इसका हम सिर्फ लेफ़्ट के बदले राइट करेंगे, इसको 3 को लेफ़्ट के बदले क्या करेंगे, राइट 2040 पे ही रखेंगे, वही जहाँ पे लेफ़्ट में था, ये 2040 लेफ़्ट में था, ये राइट पे 2040 पे आएगा, ये इसी के राइट में आ जाएगा ना, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो C4 है, इसको कहाँ रखोगे बताओ, इसी तरीके से इसका एक 1570 पे था, तो दूसरा राइट पे होगा, RIGHT 1570, यानी कि ये जो था 1570 पे लेफ़्ट टॉप, इसका राइट टॉप होगा 1570 पे, ठीक है। सो जब मैं अभी करूँगा तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन चौथा कहाँ गया, चौथा गायब हो गया, चौथा नहीं आया, समझ नहीं क्यों आया, ये C4 क्यों नहीं आया। हमने 3 एडिशंस अच्छा, ये मैंने बनाए 2040 दोनों 2040 पे रखा है ना, ये एक आना चाहिए ना 1570 पे, इसको मैंने, ये 1570 वाला है ना, ये 1570 है, पता नहीं मैंने ORIT किया शायद, मैंने इसको क्योंकि 2040 ही रखा, इसको चेंज नहीं किया था मैंने शायद, तो 1570 इसका लेफ़्ट, 1570 ये है, ये इसका ये है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये 5 सेकेंड्स तो लेगा अपना एनिमेट करने में, यू कैन टेक अप 5 सेकेंड्स, लेकिन इसको कब कब काम करना है, जब सारा होगा 12 सेकेंड्स के बाद, जब ना वो निकलेगा, वो यूस नहीं द्राम उदास, जब ना वो 3 ऊपर गया, फिर वो आ गया, हैप्पी न्यू ईयर आ गया, तब उसके बाद इसको आना है ना, जब ये 4 आ गया उसके बाद 3 उड़ेगा, फिर इसकी थोड़ी सी टाइमिंग हमें चेंज करनी है, और आप असाइनमेंट में कर लेना, इसको टाइमिंग एडजस्ट करना। अब हैप्पी 3 आया, और अब देखो ये जो नीचे से, अगर आपने देखा होगा, ये नीचे से आ रहा था एक स्ट्रीक जैसा, इफ़ यू हैव नॉट नोटिस इट जस्ट सी इट, यहाँ देखना, ये नीचे से आएगा स्ट्रीक जैसा, फिर ये स्केल अप हो जाएगा, यू सी इट, इफ़ यू कैन सी इट, जो मैंने काम किया था इस पर। इसके बाद देखना, यहाँ ध्यान देना, इस और देखो आ रहे हैं ना, ये 2 यहाँ से आ रहे हैं, ये नीचे से चढ़ के आ रहे हैं, और इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, विड्थ कम थी, और फिर स्केल डाउन थे, फिर हमने स्केल अप किया इनको, ठीक है। तो उसमें आपको अगर नहीं दिखा, आप ध्यान से देखना अपनी जगह पे, ये नीचे से आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको टॉप 100% रखा था पहली बार, ठीक है ना। डिव को हमने टॉप क्या रखा था, इसका हमने टॉप रखा था 100%, ताकि टॉप मार्जिन की जब बात कर रहा हूँ मैं, ओके। अच्छा, अब हम किस पे काम करेंगे, ये हो गया हमारे डिव, अब हम करेंगे स्पैन पे काम, किस पे, स्पैन पे अब काम करेंगे, ठीक है ना। तो स्पैन कहाँ पे है, वो डॉट क्रैकर जो मेरा है ना, क्रैकर के अंदर जो इमीडिएट चाइल्ड डिव्स है, ठीक है, उसके अंदर स्पैन, जो भी स्पैन है उस पे काम होगा, ठीक है। उसकी पहले हम विड्थ, स्पैन की विड्थ हम रखेंगे, अभी तो कुछ था नहीं, तो फिलहाल 6 पिक्सल रखूँगा मैं विड्थ, ओके। और इसकी हाइट भी मैं रखूँगा 6 पिक्सल्स, ताकि वो स्क्वायर लगे, ओके। और डिस्प्ले क्या रखेंगे, इसका डिस्प्ले रखेंगे इसका ब्लॉक, हो गया। और इसकी पोजीशन तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली रखनी पड़ेगी, तब जाके तो ये दाएं बाएं घूम सकता है। और इसका टॉप फिलहाल 0 पे, और इसका लेफ्ट 0 पे। और बताओ इसकी ओपेसिटी क्या रखेंगे इन द बिगिनिंग, 0, so that hidden, I don't want to show it।
और इसका बॉर्डर रखो कुछ इसका 2 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड। और बताओ कलर कौन सा रखोगे, कलर कोई चेंज करो इसका कलर, मे बी आई से हॉट पिंक। हॉट पिंक तो ऑलरेडी था ही हमें, थोड़ा सा हल्का इसमें कम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिलहाल ब्लैक रखेंगे ताकि वो दिखेगा, बाद में आपको चेंज करेंगे, ठीक है। ये हो गया बॉर्डर। और इसकी एनिमेशन करेंगे हम, एनिमेशन का नाम रखेंगे हम मे बी क्रैकर स्पाइक्स और समथिंग, बट इट्स नॉट स्पाइक्स, वो अंदर का है वो डिज़ाइन। आई विल कॉल इट क्रैकर स्पाइक्स, ओके। इसमें 6 सेकेंड से उसके बाद जब वो रेड वाला बना उसके बाद ही बनना चाहिए। उसको 5 सेकंड दिए थे तो इसको 1 सेकंड उसके बाद देंगे ना, 5 सेकंड, तो इसको 6 सेकेंड्स उसके बाद हम देंगे। ईज इन आउट, ये हमारी फंक्शन होगी। और इसको भी 12 सेकेंड्स वेट करवाएंगे, उसके बाद ये होना चाहिए, ठीक है। और फ्लावर्स हो गया। अब हमें ये एनिमेशन क्रैकर स्पाइक्स बनानी है, तो बताओ इसमें क्या क्या करेंगे हम, शाबाश। बाकी बताओ लड़कियों में से बताओ मुझे क्या करना चाहिए इसमें। इसमें सारा हम दे ही रहे हैं, इसके विड्थ दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं हम। और मैंने इसको आपको देखा, मैंने इसको बॉर्डर रेडियस नहीं दिया, बिकॉज आई वांट इट कि ये फिर ऐसे दिखे। देखो मैं बताऊंगा आपको, कहाँ गया हमारा है। जो मैं इसमें चाह रहा हूँ करना वो ये है कि मेरा ये तो आए, ये मैं ये स्पाइक्स में कैसे बनाऊंगा। ये स्पाइक्स, ये सर्कल के अंदर स्पाइक्स होंगे, यानी कि एक स्पैन तो ऐसे आएगा, दूसरे स्पैन को अगर मैं रोटेट करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, वो ऐसे बनेगा, ठीक है, तो उससे स्पाइक बन गई, है ना। तीसरे को मैं और रोटेट करूँगा, ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए वो यहाँ पे आ गया ऐसे, वो एक और स्पाइक बनेगी, ठीक है। अब मुझे डिज़ाइन में नहीं आ रहा, ये कुछ ऐसे, फिर इसके ये जो स्पाइक्स ये जो है ना, ये ऐसे स्पोक्स जैसे लगेंगे हमें, ये ऐसे लगेंगे। और ये ऊपर से अपना सर्कल आएगा वो रेड वाला। तो ये कैसे आया ऐसे, असल में हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसी स्पैन को मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम रोटेटिंग दिस स्पैन लाइक दिस। अभी 2 में देखो, इसी तरह से मैं बाकियों को भी करूँगा, ठीक है। अभी आ गया ना ये स्पाइक्स ऐसे ऐसे ऐसे, जब इनका कलर सेम ही रहेगा तो फिर ये दिखेगा ऐसे, ठीक है। फिलहाल मैंने 2 को किया तो उसमें स्पाइक्स आ जाएंगी, समझ में आई। सो दैट मीन आई नीड टू रोटेट इट, दैट्स इट। और मुझे ये स्क्वायर ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये, इसमें मुझे ये नहीं चाहिए कि इसका सर्कुलर वगैरह, इसमें मैंने स्क्वायर ही रखा है इसको, 6 पिक्सल का रखा मैंने इसको, ठीक है। उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने ड्यू दिया था वगैरह, 10 पिक्सल दिया था वो, तो ये इसके अंदर रहेगा, 6 पिक्सल उसके अंदर रहेगा आराम से। क्रैक अब मुझे बनाना है, कौन है एनिमेशन, क्या बनाना है मुझे, एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स, एंड इसका नाम है क्रैकर स्पाइक्स, CRSC केयर क्रैकर स्पाइक्स। इनफैक्ट ये स्पाइक क्रैकर स्पाइक्स, या मुझे चलो क्रैकर स्पाइक्स ही करते हैं, क्योंकि ऐसे यहाँ पे डाल ही दिया तो अब वहाँ क्या। इसमें मैं क्या कहूँगा, फ्रॉम टू, बस इसमें फ्रॉम करूँगा और टू कहूँगा कि फ़िलहाल इसकी जो ओपेसिटी है उसको आप 0 कर दो, पहले तो 0 ही है, फिर लास्ट में इसकी ओपेसिटी जो है ना वो क्या करोगे आप, 1, ओपेसिटी 1 कर दो, ठीक है। लेकिन अब जब ये स्क्वायर्स बनेंगे, किसके बनेंगे, क्योंकि स्पैन भी कितने हैं, 4 है। फिलहाल जिस तरह मैंने डिव किया ना यहाँ पे काम, देखो जिस तरह मैंने यहाँ पे डिव किया काम, जो मैंने डिव यहाँ पे काम किया कि डिव के ऊपर के मैंने कहा ये होगा वो होगा, लेकिन फिर हमने काम किस पे किया, जो डिव में C1 C2 C3 C4 है। इसी तरीके से मैंने स्पाइक पे काम किया, स्पैन पे काम किया, लेकिन स्पैन कितने हैं, 3। अब इन तीनों पे काम करना होगा। और मैंने अगर देखा है, मैंने यहाँ पे इनको आईडी वगैरह कुछ नहीं दिया। अब मुझे करना है ना पहले वाला स्पैन, दूसरा वाला स्पैन, तीसरे वाला स्पैन, जब मैं आईडी कुछ नहीं दिया, अगर मैं आईडी दूंगा तो फिर मैं उसके साथ जैसे C1 C2 C3 दिया था वैसे मुझे इनको भी देना चाहिए था, मैं भूल गया हूँ देना। तो आप मुझे बताओ आप कि मैं इस स्पैन में से पहला, दूसरा, तीसरा चाइल्ड जो इसका C1 का है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, चाइल्ड
मैंने इस्तेमाल किया वर्ड, यानी कि मैं इस div का जो पहला चाइल्ड है, दूसरा चाइल्ड है और तीसरा चाइल्ड है, nth देखो यूज हाँ करेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि देखो ये वाला div जो है इसका लग गया वो 20-40 पे, ये लग गया 15-70 पे, ये इसका राइट में आ गया, इसके लेफ्ट में आ गया, और जो स्पैन जो है बिल्कुल वो उसी डिव के अंदर ही रहेगा, जहाँ डिव है वो उसकी पोजीशन वही रहेगी, तो मुझे पोजीशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, पोजीशन उसकी वही रहेगी उसी डिव के अंदर, यानी कि जहाँ पे ये चल रहा है मेरा गोल, इसका जहाँ ये गोल है मेरा स्पैन उधर ही आएगा, ये 10-10 का इसको था ये, अब स्पैन 6-6 वाला इसी में आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे आएगा ना, ये इसमें आ जाएगा, ये इस डिव का इसमें स्पैन आ जाएगा, इस डिव का इसमें स्पैन आ जाएगा, इनफैक्ट आ भी गया, आप देखो आ गया ना, क्योंकि मैंने किया ना, लेकिन ये चारों स्पैन आ रहे हैं ना, ये क्या आ रहे हैं, चारों। अब मुझे दूसरे स्पैन को थोड़ा रोटेट करना है ताकि वो स्पाइक दिखे, तीसरे स्पाइक को और रोटेट करना है ताकि वो स्पाइक्स यहाँ पे दिखे ना, वो वाली चीज़ जो मैं दिखा रहा था, ठीक है। अब उसको मैं कैसे कहूँगा, यूजिंग द nth चाइल्ड, राइट। या तो मुझे इसमें क्लास नेम देना चाहिए, आप भूल गए तो बताओ कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बताओ, हाँ टू में डेफिनेटली लिखेंगे पहले डॉट क्रैकर, जो मेरा Dot क्रैकर है उसमें जो डिव है ना, उसमें जो स्पैन है उसका कोलन करेंगे हम nth चाइल्ड, और कौन सा nth चाइल्ड, पहला, ठीक है बाजी, जो पहला है उसको तो वैसे ही रहने देंगे, ट्रांसफॉर्म में करेंगे हम रोटेट, पहले वाले को तो रोटेट नहीं करना, वो वैसे ही रखना है, दूसरे वाले को करेंगे यहाँ तो 0 डिग्री रखूँगा मैं, ठीक है ओके। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, क्या हो गया इसका, आई विल कॉपी दिस एंड कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, नहीं 3 ही है ना, 4 नहीं है, तो ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है और ये थर्ड चाइल्ड है। देखो मैं सेकंड चाइल्ड को थोड़ा रोटेट करूँगा, से फॉर एग्जांपल 120 डिग्री रखूँगा मैं इसको, 120 डिग्री, थर्ड चाइल्ड को भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, देखो फिलहाल मैं एक को देख रहा हूँ कि इसमें जो है जिधर जिधर ड्यू है वहीं स्पैन है, तो जहाँ मैंने ड्यू का सर्कल मारा उधर ही आ जाएगा मेरा कौन, उधर ही आ जाएगा आपका स्पैन, तो स्पैन बिल्कुल रेक्टेंगुलर है। अब देखो ये स्पाइक्स ऊपर जा रही हैं फिर फूल रही हैं, अब 2 बन गए है ना, 1 2, अब मैं तीसरा करूँगा जो मुझे यहाँ से आ जाएगा, सो इट विल लुक नाइस। सो यानी कि ये वाला जो बंदा है इसको मैं मानो 240 की ये दे रहा हूँ, 240 डिग्री की ये दे रहा हूँ। अब देखो जब ये चलेगा, अब इसमें खूबसूरत सी स्पाइक्स है, मैं ब्लैक तो नहीं रखूँगा, कलर चेंज करूँगा मैं इसका, क्योंकि ब्लैक अजीब दिख रहा है। देखो ऊपर चल रहे हैं ये रेड स्पाइक्स, अब देखो ये बिल्कुल जैसे व्हील जैसा बन गया ना, ये बिल्कुल खूबसूरत सा, असल में ये स्पैन्स ने रोटेट करके, ये स्क्वायर स्पैन्स थे जो रोटेट करके ये स्पाइक बना दिया उसने। अब इसमें क्या करेंगे हम काम, इसमें हम ये काम कर देंगे कि इसका कलर सिर्फ चेंज करेंगे हम, ठीक है ना, वो थोड़ा सा पिंकिश वगैरह कुछ, या मैं ग्रीनिश ग्रीन में आ जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा ना, फिर कलर कम्बिनेशन आप खुद कर देना एंड इसको फिक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो कर देना, और इसको और खूबसूरत बनाना है आपको। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, चीज़ें सिखा रहा हूँ, वैसे हमारी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो गई एनिमेशन की, मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट के बाद आपको कोई इशू नहीं रहेगा। अब देखो बन गया ये बिल्कुल ओके। अब हमें यहाँ पे वो लाइंस चाहिए, अब क्या चाहिए हमारे पास, लाइंस ओके, और फिर वो डॉट डॉट। अच्छा जी, अब बताओ क्या करूँगा मैं, लाइंस के लिए किसको पकड़ूंगा मैं, मेरे पास ऑलरेडी जो मेरा ये है ना स्पैन वो है मेरे पास, तो मैं स्पैन को ही पकड़ सकता हूँ B4 करके, है ना, B4 और आफ्टर करके हम कर सकते हैं, है ना, तो हमें अलग से कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो आई टैग्स हैं उनको उनको उनसे हम डॉट्स बनाएंगे लास्ट में। तो मैं कहूँगा डॉट क्रैकर जो मेरा है, ओके डॉट क्रैकर जो मेरा है, ओके उसमें जो कौन है बैठा है डिव, और उसमें कौन बैठा है स्पैन, और स्पैन का जो मैं B4 कर दूंगा, B4 ओके, इट्स एन एलिमेंट सो डबल कोलन, तो जब B4 करते हैं तो कंटेंट क्या रखेंगे पहले,
खाली जैसे हम कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। और विड्थ दे दो, कितनी चाहते हो विड्थ आप दे दो 2 पिक्सल की, और हाइट अच्छी खासी दे दो क्योंकि लंबी लाइन होनी चाहिए। हाइट जितनी आपकी मर्जी है, फिलहाल मैं इसको रखता हूँ 50 पिक्सल, फिर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। हाइट 50 पिक्सल, और डिस्प्ले इसका ब्लॉक तब भी चलेगा वैसे, तो फिर भी डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं मैं, टू मेक इट श्योर दैट इज टेकिंग अप इट्स ओन स्पेस। ओके, और बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहते हो? बैकग्राउंड कलर स्लाइड का जो आपकी मर्जी है, बैकग्राउंड कलर दे दो, मे बी येलो दे दूंगा मैं, ठीक है, येलोइश स्ट्रीक आ जाएगी। ओके, और पोजीशन तो एब्सोल्यूट करना पड़ेगा वरना वो बिल्कुल दिखेगा नहीं, कहीं मतलब उठेगा नहीं अपनी जगह से। ओके, और चूंकि वो उसी के साथ है ना, फिर हम उसको लेकिन हम थोड़ा सा इसका टॉप जो है वो उठाएंगे। हम इसका टॉप क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, सो माइनस करेंगे टॉप, ताकि वो अपने जो वो जहाँ पे वो स्पैन था उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, मानो -60 पिक्सल करता हूँ मैं, फिर देखेंगे एडजस्ट करेंगे अगर नहीं हुआ ठीक। ठीक है, आई डोंट नो, इसको देखेंगे। और लेफ़्ट इसका जो है वो 2 पिक्सल रख दो। ठीक है, ये रहा हमारा ये वाला। तो आ गई येलो कलर के लाइंस। मैंने लिफ्ट किया इसको, थोड़ा सा लेफ़्ट में, थोड़ा सा लेफ़्ट किया, ये थोड़ा सा लेफ़्ट हो गया ऐसे। ऐसे मैंने क्यों किया, वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। और लेफ़्ट इसको छोड़ देंगे 2 पिक्सल्स, कमांड दिस, व्हाई शुड आई डू दैट। ओके, बराबर बीच में आ जाएगा ना। हाँ, सो लेफ़्ट इसको छोड़ देते हैं, नहीं टॉप तो है ज़रूरत है, लेफ़्ट नहीं चाहिए हमें। ठीक हो गया, अभी बिल्कुल आ गया ऐसे। ओके, मे बी वो डॉट्स के साथ मत करेगा परेशानी, इसलिए मैं सोच रहा था। ठीक, तो वो देखेंगे बाद में। फ़िलहाल हमारी पास स्ट्रीक्स आ गई, लेकिन मुझे और भी चाहिए, मैं आफ्टर से और स्ट्रीक्स पैदा कर सकता हूँ। सो आई कैन यूज़ दिस थिंग। ओके, एंड ऐसे कमांड ऑप्शन एंड डाउन एरो, एंड आई से जो क्रैकर में डिव है, डिव में जो स्पैन है, स्पैन का आफ्टर। ठीक है, मैं उससे अगर 3 स्पैन है तो जो मेरा बिफोर है उससे 3 स्पाइक्स आ गई, और इससे मुझे 4 स्पाइक्स और 3 स्पाइक्स आएंगे आफ्टर से। ठीक है, कंटेंट कुछ मतलब 2 पिक्सल 50 पिक्सल ब्लॉक। ठीक, येलो में भी डिफरेंट कलर दे दो अब, जो आपकी मर्जी होगी, मानो ऑरेंज, ये जो burning color, something like that, I don't know what, let it be like this color, और पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो। लेकिन अब इसका ये बॉटम साइड अप कर दो, जो टॉप आपने वहाँ उसको रखा था, इसमें बॉटम आप 60 पिक्सल कर दो, वो टॉप पे आया था, ये बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, बॉटम इसको -60 पिक्सल कर दो, और लेफ्ट छोड़ ही दो अभी। ठीक है, आ गया ना। अब ये आ गया इसका एक और लाइन, एक और लाइन, तो 3 येलो लाइंस मुझे आ गई फ्रॉम द किससे, ये 3 येलो लाइन आ गई बिफोर से, स्पैन के बिफोर से, और 3 जो ये रेड वाली लाइंस है, ये ऑरेंज वाली लाइंस है, ये पिंक वाली लाइंस है, ये आ गई आफ्टर से। अब हमें डॉट्स डालने हैं हर जगह। कितने डॉट्स डालने हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हमें डालने हैं। ठीक हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास आई टैग है, तो वो आई टैग से हम करेंगे वो डॉट्स। तो हम कहेंगे जो डॉट क्रैकर मेरे पास है, ठीक है, जो डॉट क्रैकर मेरे पास है, उसमें जो ड्यू बैठा है, जो इसके पास डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, उसके पास जो स्पैन है, जितने भी स्पैन है उसकी बात हो रही है, उसमें जो आई है उसका जो B4 है, उसका जो B4 है, यहाँ इनफैक्ट डबल कोलन। ओके, उसका जो B4 है उसमें कंटेंट क्या रखेंगे आप पहले? हाँ जी, कंटेंट क्या रखें? अभी तो रख रहे थे ना, नथिंग, पुट कंटेंट नथिंग। अच्छा, अब इसका विड्थ दे दो, विड्थ बिल्कुल छोटी सी 3 पिक्सल दे दो। ओके, हाइट भी मेरे ख्याल से 3 पिक्सल होनी चाहिए, या अभी रहने देते हैं, हाइट मोटा आ जाएगा, फिर देखते हैं हाइट कितनी है जगह। हाँ, 3 पिक्सल रखते हैं फिलहाल, हाइट 3 पिक्सल। ये डिस्प्ले ब्लॉक क्योंकि मुझे डॉट जैसे दिखना चाहिए ना, तो मैं हाइट के ऊपर भी स्केप्टिकल हूँ, मैं इसको बंद करूँगा फिलहाल, बाद में देखेंगे। डिस्प्ले ब्लॉक रखूँगा मैं। हाँ, बॉर्डर रेडियस बिल्कुल, इसका बॉर्डर रेडियस जो मेरा होगा वो 50% होगा, क्योंकि मैं वो डॉट गोल दिखना चाहिए ना। 50% तभी आएगा जब बॉर्डर रेडियस 50% होगा, तभी गोल होगा।
और बैकग्राउंड इसका दे दो, बैकग्राउंड कलर बोलो या बैकग्राउंड बोलो, आपकी मर्ज़ी है। मे बी रेड कलर दूंगा मैं, रेड डॉट्स, ठीक है। और बोलो क्या करेंगे इसको, पोजीशन क्या होनी चाहिए? पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए। और इसका जो टॉप है ना वो थोड़ा बाहर आना चाहिए ना उससे, तो टॉप मैं दूंगा मानो 15%, 15 पिक्सल देंगे, बाहर रहेगा ना ये, -15 पिक्सल उससे ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। और बताओ लेफ़्ट कितना, लेफ़्ट करेंगे या नहीं करेंगे? लेफ़्ट में देखूंगा अभी, ठीक है, इसको छान जाने दो। ये आ गया आपका ये डॉट्स, तो दिखाई नहीं, कलर नहीं है ना। कलर तो मैंने दिया ना, बैकग्राउंड देना ना, मैं क्या कलर कर देना है, इसमें थोड़ी कंटेंट है। बैकग्राउंड दिया ना हमने रेड कलर का। विड्थ भी दे दी बिफोर। डॉट्स दिख नहीं रहे, क्यों नहीं दिख रहे हैं? मे बी हाइट की वजह से। ये इसी के अंदर मत आ रहे हैं। लेफ्ट इसको देंगे, लेफ्ट थोड़ा सा हटाएंगे इसको, 10 पिक्सल लेफ्ट दे दो, ठीक है। सर वो लाइंस के बीच में आ रहे डॉट। हाँ हाँ वही मसला है, इसलिए लेफ्ट इसको देंगे ताकि थोड़ा साइड में आ जाएगा। फिर भी नहीं दिख रहा, -15 पिक्सल किया, लेफ्ट किया, पोजीशन एब्सोल्यूट की मैंने इसकी। हाँ एक में टॉप -15 पिक्सल दे दिया हमने। क्या गड़बड़ किया? हमने कहा कि आई, और बिफोर कहा मैंने, स्पैन के अंदर आई टैग तो है ही है, उसके बिफोर में मैं कह रहा हूँ करो आप कंटेंट मत रखो, कुछ विड्थ रखो 3 पिक्सल की, हाइट तो मैंने छोड़ ही दिया इसको, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, और बॉर्डर रेडियस 50% कर दो, करना है बैकग्राउंड इसका रेड दे दिया मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट तो आना चाहिए। ये तो आना चाहिए ना, मैंने कहीं नाम में गड़बड़ ना, डॉट क्रैकर CRACKER, उसमें जो ड्यू बैठा है, उसमें जो स्पैन बैठा है, उसका जो आई है, उसका जो B4 है, तो ठीक है। किसी को आ रहा है? ना। आपको भी नहीं आ रहा? फिर हमने गड़बड़ कहाँ पे की है? कमांड ऑप्शन डाउन एरो, और इसके आफ्टर पे भी हमें करना है ना काम, अभी इसके आफ्टर पे भी करेंगे हम काम। आफ्टर कंटेंट ये रखा मैंने, विड्थ 3 पिक्सल की रखी, हाइट दे दो यार, हाइट ही असल में मसला है, ठीक है, हाइट दे दो 3 पिक्सल, क्योंकि हाइट 0 हो जाएगी तो फिर वो कुछ दिखेगा ही नहीं। मैंने सोचा डॉट के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन हाइट तो देनी पड़ेगी ना, खाली विड्थ काम नहीं करेगा। हाँ वही मसला था। अब रेड की जल्दी आप दे दो इसको ब्लू, या कुछ और कलर दूंगा मैं, ब्लैक कलर दूंगा मैं, ठीक है। एक तेरा काला चश्मा दूंगा मैं इसको। अच्छा 15 पिक्सल और 10 पिक्सल टॉप एंड, इसका ये लेफ़्ट नहीं राइट करो, वरना एक ही जगह पे आएगा ना ये, वरना एक ही जगह पे आएगा। अब आधे राइट पे आ जाएंगे, आधे लेफ़्ट पे आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे लेफ़्ट पे और 3 आ जाएंगे राइट पे। बाकी टॉप 15 पिक्सल वो निकलेगा बाहर, इससे अपने स्पैन से बाहर आएगा ना, ठीक है। आ गया। आ गया, ठीक है। सो फाइनली हमें आ गया, ये उठ रहा है लिड, ठीक है। इसकी थोड़ी टाइमिंग चेंज करनी है, उसके बारे में सोचना है, कॉपी पेन लेके। देखो ये स्ट्रीक्स आ रहे हैं ना, आपको पता नहीं आपको दिख भी रहा है कि स्क्रीन पे ये स्ट्रीक्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा, लेकिन इसमें कबूम भी होना चाहिए ना, कबूम तो यानी कि माइन नहीं हमें करनी है, बॉम्ब्स नहीं लगाने हमें, ठीक है, ये पटाखा होना चाहिए। सो काइंड ऑफ काबूम, यू गेटिंग, ठीक है। मैं सोच रहा था अभी हम वो करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के प्रोजेक्ट्स, लेकिन आई थिंक इट इज़ टू मच टाइम, बिकॉज ऑलरेडी 10:22। सो देखें ये जो प्रोजेक्ट था, इट वाज नॉट इट्स काइंड ऑफ फन, बट इट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिस टू द एनिमेशंस, बट लेकिन भी और भी करने हैं 3D एनिमेशंस एंड ऑल,
ठीक है, Yes. वी हैव टू डू 3D एनिमेशंस एंड ऑल, उसको करेंगे। लेकिन फिलहाल हम कल से क्या करेंगे काम, हम फ्लैक्स बॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे। वी विल यूज सम यूज केसेस ऑफ फ्लैक्स बॉक्स सो दैट वी डेवलप सम प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। सो ये हफ्ता में Okay. एप्लीकेशन में चला जाएगा सारा। सो आई विश यू ऑल स्टे इन इट एंड डू विद मी, ठीक है जी। Inshallah. ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। Inshallah.